Good evening, sir. Good evening, good evening, Harsh, and good evening, Abhinav. Good evening, sir. Good evening, Abhinav. So today is our day 9, and I request both of you to keep your camera on. Okay. So today we are going to have a revision, just like other classes also. This class will have a revision session, and then the Test. next class means on 17th, on Thursday, you are going to have a test, both theory and practical. Okay. Practical means I will tell you to share your screen. I will give you some task, and online you have to finish that task. And theory to is okay theory. So quickly we will go through it. I have received notification from Abhinav that he has completed the task of Excel, but I think Harsh has not sent any message. So first is computer fundamentals, with which we started our class. We discussed about computers are mechanical devices which were invented by human beings to make their life easy. And we came to know that human beings are very, I can say, sharp. Whenever they find a way by which they can make their life easier, they go for that. That's the reason we have invented so many machines, so many systems. Human have also discovered fire and wheel and all the other things, right? Application of computers. Now, no need to discuss this because now every company, every office, everywhere, all over the world, all over the India, without computers, you cannot think about office, right? So application has become very big. What is a computer? A mechanical device for calculations, and it is more than calculator because apart from storing, doing calculations, it can also store data and informations in both number form also and in text form also, in image also. So in all forms it can save. What else? Concepts of data and information. This who will explain? Anybody who remembers concept of data and information? Abhinav, you can tell because you were there in the first class. Yes, sir. Can you tell us about data and information? What is data and what is information? The data stores all files we create. Now, what is the difference between data and information? So, You forgot yes, because revision is not there. So, for both Abhinav and Harsh, when we start storing some data like suppose in my school, there are 1000 students. And in my computer, I have stored their date of birth. Date of birth of 1000 students I have stored. Name, date of birth, name, date of birth, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, this is of no use. This data alone is of no use. But if we will sort that data and we will take out an information that out of 1000, there are 400 students who have born in January month. That is an information that 400 students of my school, they are born in January. We can also take out information about who is the uh, oldest boy of my school, who is the youngest, right? Suppose today, this is the month of June. In the month of June, how many students are having birthday? So when we store data, we sort it and we take out some nice informations
with the help of which we can do something else. That is your information. So just data is a raw data, and then we analyze, sort, and take it out as per my requirement, and that is called information. A typical computer system, so you all have computer system. If you go for desktop, then you will see you have a monitor, you have a keyboard, you have a UPS, you have a CPU, you have a mouse, speaker, printer, sometimes webcam. All these things are there. They are out of that, all those components. Few are called input devices and few are called output. For entering data, input, and after the data sorting is there, now I want to display, then we have computer output devices. Hardware, software, so all components of computer which I can see and repair, they are called hardware. If we can't see it, but we know, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके कंप्यूटर में कहाँ पर है एक्सेल दिखलाओ, सो यू कैन नॉट टच इट. मतलब टच इट मीन्स वो आपके सिस्टम में इट इज इन द सॉफ्ट कॉपी, आप उस पर काम कर सकते हैं, बट मैं आपसे बोलूं कि प्लीज गिव मी वन एक्सेल, आप नहीं दे सकते. यू कांट गिव मी वन एक्सेल. वो फिजिकल रूप से मौजूद नहीं है. इट इज इन द वर्चुअल फॉर्म. बट इफ आई विल टेल यू गिव मी टू माउस, यू कैन गिव मी टू माउसेस. वो फिजिकल रूप में. सो जो भी फिजिकल रूप में मौजूद है दैट इज हार्डवेयर, एंड जो भी सॉफ्ट कॉपी में है सॉफ्टवेयर बोलते हैं उसको. एंड वी आर सॉरी, वी आर यूजर्स. जो भी उस कंप्यूटर पे काम करता है, काम करके डेटा की एंट्री करता है, सॉर्ट करता है, इंफॉर्मेशंस बाहर निकालता है, दे आर कॉल्ड यूजर. ये बिल्कुल कंप्यूटर का बेसिक है, इसको जानना जरूरी है. दिस वी डिस्कस इन द फर्स्ट क्लास. Now we will go for the next one. Okay. This is also okay. बात बता. Advantages of computers and limitation of computers. Okay. In the next class, we discussed about memory. किसी भी कंप्यूटर की, यानी कि जो मोबाइल है, that is also you can say a type of computer only. उसकी सारी importance उसके मेमोरी के कारण है. जितनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी, आई थिंक हम ह्यूमन बीइंग्स की भी जो पूछ है मार्केट में, समाज में, वो हमारी याददाश्त के कारण है. जिसका ब्रेन जितना शार्प, जिसकी मेमोरी जितनी स्ट्रॉन्ग, उसका उतना ज्यादा कद ऊंचा. सो सिमिलरली मेमोरी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर्स. और अब मैंने कहा था आपसे कि अब जो है कम से कम 512 GB, 256 GB से नीचे का कंप्यूटर नहीं आता है, लैपटॉप नहीं आता है. आपको हमेशा उससे ऊपर ही मिलेगा. 256, 512, 1 TB, 2 TB, इस तरह से अब मिलता है. बिकॉज नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर मोर मेमोरीज. मैंने ऐसा सा लैपटॉप देखा हुआ है जिसके ओनर को मालूम है कि वो पूरी जिंदगी उसके अंदर वीडियोस एंड फोटो एंड फाइल डालेगा, लेकिन पूरी जिंदगी में वो अपने लैपटॉप को फुल नहीं कर पाएगा, इतना स्पेस है उसके अंदर में. सो मेमोरी इज द यू कैन से मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जिसके कारण उसकी पूछ है. बिकॉज कंप्यूटर को हम अच्छा क्यों मानते हैं? बिकॉज आई कैन स्टोर समथिंग, आई कैन कीप इट देयर, एंड वेन एवर आई वॉन्ट आई कैन टेक इट बैक. मैं उसको वापस लेकर के देख सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ. ये जो उसकी क्वालिटी है कंप्यूटर की, इसीलिए कंप्यूटर हैज बिकम सो इंपॉर्टेंट. कैलकुलेटर कैन कैलकुलेट, बट कैलकुलेटर कैन नॉट कीप इन मेमोरी. वो काम करके निकल जाएगा, दैट्स इट. ओके, सो व्हाट डज दिस मेमोरी लुक लाइक? ये कैसा दिखता है? तो हमने कहा कि भाई वो हम देख तो सकते नहीं हैं, लेकिन व्हेन यू विल ओपन द कंप्यूटर का जो उसको बोलते हैं मदरबोर्ड बोलते हैं, मदरबोर्ड, अगर आप उसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही एक चिप बने होंगे उसके अंदर में, और उसके अंदर में बड़े ही छोटे सर्किट्स बने होंगे. All those circuits are the chip, small chips are there
जिसके ऊपर मेमोरी को स्टोर किया जाता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि उसको हम कैसे मेजर करते हैं, तो फिर भी डिस्कस किए पूरा का पूरा बाइनरी सिस्टम में है 010101, और हर एक नंबर के लिए या सिंबल के लिए या टेक्स्ट के लिए इस 0101 का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो सब कुछ बाइनरी में है, सब 01 पे ये है। और ये जो हमने देखा था 8, 16, 24, 8, 16 और 24, ये बिट्स बोलते हैं इसको। और जितने भी टेक्स्ट या नंबर्स या सिंबल कंप्यूटर में हैं, आइदर दे आर ऑफ 8 बिट्स और 16 और 24। इन ये 8, 16, 24 क्या है? ये बाइनरी नंबर्स है, 01, 01, 01। उन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये सबके सबको बनाया गया है। और ये जो बिट है, ये बिट से बनता है बाइट। ये जो 8, 16, 24 वाला जो है, इससे बनता है 1 बाइट। एंड देन 1024 बाइट से फिर 1 KB, 1000 KB, 1 MB, 1000 MB, 1 GB, 1000 GB, 1 TB, ऐसा करके ये चलता चला जाता है। इसमें हमने एक बात और डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था इसमें? एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या थी? बिट्स एंड बाइट। ओके 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 ओके। 1 KB, 1 MB, 1 GB, 1 TB। सो अब तो हमें KB और MB वी डोंट केयर, वो इतने छोटे हो गए हैं। अब हमारी जिंदगी GB से शुरू होती है। GB और TB के बीच हमारी जिंदगी है, चाहे आपके पास मोबाइल फोन हो या कंप्यूटर हो। जब भी आप कुछ परचेज करते हैं मार्केट में, यू विल ऑलवेज आस्क इन GB, कितने GB का आपके पास मेमोरी कार्ड है या SD कार्ड है या फिर पेन ड्राइव है। GB, KB, MB अब धीरे धीरे दे आर बिकमिंग फास्ट। कंप्यूटर मेमोरी का फिर हमने देखा कि दो तरह से हो सकता है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स इंटरनल मेमोरी, ज़्यादा समझना आसान है विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में आपके पास 64 GB या 128 या 256 GB का इंटरनल मेमोरी होता है, फोन मेमोरी। उसके अलावा फोन में जगह बना होता है SD कार्ड के लिए। जब आप फोन खरीदेंगे तो ही विल टेल यू कि आपका फोन इतने GB का SD कार्ड ये अफोर्ड कर सकता है, मतलब उसके साथ ये काम कर सकता है। हर कंप्यूटर का, हर मोबाइल का अपना कैपेसिटी है। सो जो भी हमारा इंटरनल इनबिल्ट मेमोरी है, दैट इज प्राइमरी। और जो हम बाहर से लगा करके यूज करते हैं, दैट इज सेकेंडरी। मोबाइल फोन में यू कैन पुट SD कार्ड ऑल्सो, एंड यू कैन ऑल्सो अटैच पेन ड्राइव। एक आता है OTG, ऑन द गो, शायद आप लोगों ने देखा होगा। ऑन द गो आप लगा दीजिए OTG को अपने फोन में, इस तरफ उसका कॉर्ड है USB के लिए, पुट अ पेन ड्राइव एंड यू कैन यूज इट। और लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए पहले आता था फ्लॉपी डिस्क, वो सब अब खत्म हो गया। फिर CD आया, अब CD का जमाना भी धीरे धीरे चला गया है। अब है सिर्फ पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क बोलते हैं। और हार्ड डिस्क मार्केट में अब 2 TB तक का मैंने देखा है, हो सकता है उसके आगे का भी आ गया हो, बट 2 TB तक मैंने अभी रिसेंटली जब मैं गया था तो आई हैव सीन 2 TB का हार्ड डिस्क, इतना पावरफुल हो चुका है। नाउ अगर आपके पास 1 TB का इंटरनल मेमोरी है, 2 TB आपने ले लिया, हार्ड डिस्क ले लिया, यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ पावरफुल द मेमोरी ऑफ योर लैपटॉप और डेस्कटॉप इज गोइंग टू बी। फाइन। सो दिस इज द कंप्लीट गेम ऑफ मेमोरी। ये हमने डिस्कस किया था अपने सेकेंड क्लास में। नाउ वी आर कमिंग टू आवर थर्ड। इन थर्ड क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक हमने बात किया हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, CPU, ऑल दीज थिंग्स, मेमोरी, बिट, बाइट, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इंटरनल, एक्सटर्नल, ऑल दीज थिंग्स। नाउ वी आर कमिंग फॉर द मैनेजर। इस कंप्यूटर का मैनेजर कौन है? कौन इस पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है? एंड दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके इनपुट से लेकर के आउटपुट तक जो भी फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर में, द प्रोग्राम which controls this entire thing is called operating system. इसको हम कंप्यूटर का मैनेजर भी बोल सकते हैं।
सो यहाँ पे हमने इसको 3 पार्ट में बांट दिया था, CPU, इनपुट, आउटपुट। ये 3 चीजों पे कंट्रोल रखता है वो। इनपुट मतलब जो डेटा अंदर आएगा, इनपुट हो गया। जो उसको प्रोसेस करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट विल बी कॉल्ड CPU। एंड वंस डेटा इज सॉर्टेड, स्टोर्ड, सेव्ड, उसके बाद हम उसको जिस फॉर्म में मांगेंगे और वो डिस्प्ले करेगा या प्रिंट करेगा, दैट इज योर आउटपुट। सो इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ये 3 चीजें हैं मेन, इसके 3 फंक्शनल पार्ट हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम इन तीनों के ऊपर कंट्रोल रखता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मैनेजर। अब जितने भी हम काम करते हैं कंप्यूटर के ऊपर में, तो आप देखेंगे कि हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर। सो प्रोग्रामर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको जो कुछ भी कंप्यूटर में करना है वो उसका प्रोग्राम लिखता है। अगर आपको कंप्यूटर में जोड़ना है कि भाई यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, आई विल गिव अ कमांड इज इक्वल टू 1 + 2, तो वो आपको दे देगा 3। तो जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्राम लिखेगा कि इस सेल में नंबर है, इस सेल में नंबर है। अगर मैंने इज इक्वल टू लगा करके उसको सेलेक्ट किया, फिर प्लस का साइन मारा, इसको सेलेक्ट किया, इक्वल टू वापस डाल दिया, तो मैं क्या हो जाएगा, मुझे उसका टोटल मिल जाएगा। दिस इज 1 प्रोग्राम। ऐसा करते करते आप पाएंगे कंप्यूटर में जो कुछ भी हम एक्टिविटी करते हैं, एवरीथिंग इज प्रोग्राम्ड। जो भी हम फंक्शंस उसमें कर सकते हैं, उस सब के प्रोग्राम उसके मेमोरी में लिखे हुए हैं, तभी वो काम कर पाता है। अभी आपने अगर ट्राई किया होगा एक्सेल में जाकर के, आपके पास 10 नंबर्स डाले हुए हैं, आप नीचे आए, इज इक्वल टू SUM, सम किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, उस पूरे सेल को चूज कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर मार दिया, वो पूरे के पूरे आपके जो नंबर्स हैं वो अपने आप टोटल होकर के नीचे में चले आएंगे। इसका प्रोग्राम लिखा हुआ है। सो नाउ यू कैन जस्ट थिंक कि ये कितना कॉम्प्लेक्स काम है। एक कंप्यूटर को तैयार करने के लिए जो उसका जो चिप बनता है, दैट चिप अभी तो क्या है, बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन हो गया हर जगह पे, इट हैज बिकम वेरी इजी। मीन्स आप एक बार प्रोग्राम लिख दो और उसी को सारे चिप्स में कॉपी कर लो। सो दैट इज योर 1 प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के कलेक्शन को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। हम बोलते हैं कि भाई हमने फलाना सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे लगा लिया है। अब उस सॉफ्टवेयर में ऐसे कितने प्रोग्राम्स मिल करके वो सॉफ्टवेयर बना होगा। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर ऐसा हो जिसमें कि आप यू कैन ऐड, यू कैन सब्ट्रैक्ट, यू कैन मल्टीप्लाई, यू कैन डिवाइड, यू कैन पुट नंबर्स, यू कैन पुट टेक्स्ट। तो वो अलग अलग प्रोग्राम्स उसमें लिख करके उस सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है। ये एक डायग्राम था जहां पर यूजर जो है वो विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड डेटा की एंट्री करेगा। अंदर आपको दिख रहा है 2 कंट्रोल यूनिट और ALU, अर्थमेटिक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। तो जितने भी आपके नंबर्स के खेल हैं वो सब ALU पे होता है, बिकॉज बाइनरी सिस्टम है ना, 01 01 01। तो जो भी प्रोसेसिंग होगा वो उसको करने में ALU हेल्प करता है। जो कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल करता है पावर कैसे आएगा, ओके, कंप्यूटर ऑन होगा, ऑफ होगा, बूटिंग होगी उसकी, वो सब जितना भी इसका ऑन ऑफ और जो मैकेनिज्म है, दैट इज बीइंग हैंडल्ड बाय कंट्रोल यूनिट। और उसको डेटा को जो प्रोसेस करता है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो। उसी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबको कंट्रोल में करता है। एंड फाइनली यू हैव आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर या मॉनिटर। अगर सिर्फ डिस्प्ले करना है तो मॉनिटर, इफ यू वांट टू हैव इन अ प्रिंटेड फॉर्म देन प्रिंटर। एंड देन यू हैव स्टोरेज डिवाइसेस, डाउन लिखा हुआ है फ्लॉपी डिस्क, जो कि अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क हमारे पास में है। और हमने ये देखा था कि जो एक प्रोग्राम होता है वो कैसे लिखते हैं। सो दे हैव द प्रोग्रामिंग इंटरफेस, वहां चले गए, लिखा उन्होंने स्टार्ट, रीड नंबर 1 कॉमा नंबर 2, ऐड नंबर 1 कॉमा नंबर 2, स्टोर एडिशन इन रिजल्ट, डिस्प्ले रिजल्ट, एंड। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जहां 2 नंबर को ऐड करना है। तो स्टार्ट, शुरू करो, नंबर 1 और नंबर 2 को रीड करो यानी पढ़ो, उन दोनों को आपस में जोड़ दो। जो आपको जोड़ करके जो नंबर आया उसको रिजल्ट वाले बॉक्स में, जो मेमोरी का जो बॉक्स है, वहां स्टोर करो और मांगने पर रिजल्ट को डिस्प्ले करो
और एंड, खत्म हो गया। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है। ऐसे कितने सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स कंप्यूटर में लिखे होते हैं। एडवांटेजेस हमने क्या देखा था कंप्यूटर का, कि इसमें स्पीड है, एक्यूरेसी है, कंसिस्टेंसी है। यानी एक साल भी अगर आपने काम किया तो हर दिन हर घंटे ये उसी कंसिस्टेंसी से लगातार उसी परफॉर्मेंस से काम करता रहेगा। स्टोरेज इसके पास में है, वर्सेटिलिटी, यानी इसमें आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर में। वर्सेटाइल है, यानी मल्टीपल काम कर सकता है। ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक है। सो एक बार अगर आपने, जैसे सपोज मैं हर दिन अपने YouTube पे लोड करता हूँ वीडियोस, एक बार मैंने कमांड दे दिया कि प्लीज लोड, उसके बाद क्या होगा, वो चुपचाप अपने आप लोड करता रहेगा, मेरे को वहां बैठ करके देखने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन। यानी आपने कमांड दिया, आप हट गए, कंप्यूटर ने चुपचाप अपना काम खुद से कर लिया। अगर मैं किसी आदमी को बोलता हूं कि तुम ये काम करो, आप लोगों ने अपने घर पे कभी न कभी मजदूर लगाया होगा। अगर आप मजदूर लगाते हैं, उसको आपने काम बताया और आप जाकर के घर में जाकर सो जाइए, आप मजदूर आपका काम कर रहा है बाहर, ओके, आप उसको काम दे करके चले आओ, घर में आकर सो जाओ, वो क्या करेगा भाई? अभिनव क्या करेगा वो मजदूर? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। हर्ष, वो क्या करेगा वो मजदूर? सर वो बिना रुके हुए काम करते रहेगा। अरे यस बाप सर, रे, यस सर। ऐसा कौन सा मजदूर है भाई? सर जब तक सर वो काम थोड़ा पूरा देर नहीं हो जाता। जो मुझे मालूम है अपने यहाँ के मजदूरों का, जब तक आप यस उनको सर, देख रहे काम हैं, उसको देखते नहीं रहेंगे। यस सर, काम नहीं जब करेगा तक वो। देखेंगे नहीं तब तक एक झपकी मार लेगा बराबर, उतने झपकी देर मार में। लेगा, गपशप कर लेगा, कहीं बाहर चला जाएगा चाय पानी के लिए। तो हमारे ह्यूमन बीइंग्स में ऑटोमेशन नहीं है, यानी अपने आप काम करने में एफिशिएंसी नहीं है, वो काम चोरी कर लेते हैं। बट कंप्यूटर में ऑटोमेशन है, कमांड दे दिया, पूरे ताकत के साथ वो काम को करता रहेगा। बट इसके अपने लिमिटेशंस भी हैं। क्या क्या लिमिटेशंस है? डेटा करेक्टनेस। अगर मैंने अभिनव को बोला कि अभिनव मेरी उम्र 100 साल है, तो अभिनव तुम क्या बोलोगे? आप बूढ़े हैं। अरे, मैं अगर बोलता हूं कि मैं 100 साल का हूं, तुम क्या बोलोगे मुझे? सर आप झूठ बोल रहे हैं, यस सर। आप 100 साल के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक ब्रेन है जो सोचता है, जिसको मालूम है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर कंप्यूटर में डाल दूं धीरज श्रीवास्तव 100 ईयर्स ओल्ड, तो कंप्यूटर क्या बोलेगा? आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं बोलेगा, वो उसको नोट कर लेगा, वो उसको डिस्प्ले कर देगा। मैं अगर डाल दूं आज फेसबुक पे कि मैं 100 साल का हूं, तो क्या करेगा फेसबुक? उसको डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि वो भी एक तरह का कंप्यूटर है, जो मैंने इंटर किया उसको डिस्प्ले कर दिया। लेकिन अगर मैं किसी आदमी को बोलूंगा कि मैं 100 साल का हूं, वो बोलेगा अरे यार क्यों झूठ बोल रहे हो। तो ये एक प्रॉब्लम कंप्यूटर में है कि उसके पास अपनी थिंकिंग नहीं है, जो आप डाल देंगे वही वो डिस्प्ले करेगा। यानी अगर यूजर ने डेटा एंट्री में गड़बड़ की तो गलती हो सकती है। प्रोग्राम करेक्टनेस वही चीज हो गया, अगर मैंने प्रोग्राम सही से नहीं लिखा तो कंप्यूटर खुद से उसको चेंज नहीं कर सकता है, वो रॉन्ग प्रोग्राम ही चलाता रहेगा। कंप्यूटर्स कैन नॉट थिंक, हमने बहुत बात कर लिया। एक्सपीरियंस, जैसे कि आदमी है वो बढ़ते उम्र के साथ उसका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता है, उसका जो काम करने का जो ढंग है वो इम्प्रूव होता है। लेकिन कंप्यूटर के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जैसा काम वो डे 1 में कर रहा था जब आप उसको खरीद करके लाए थे, और जब वो खराब होते होते तक उसी स्पीड से काम करता रहेगा। उसके स्ट्रक्चर में, उसके दिमाग में, उसके एल्गोरिथम में कोई अंतर नहीं आएगा। अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है कि अगर सपोज मैंने बोला अभिनव को कि अभिनव प्लीज गो टू मार्केट एंड ब्रिंग मी 1 किलो पोटैटो। अभिनव घर से बाहर निकला, रास्ते में बारिश हो रही है, तो उसको दिखा एक व्यक्ति वहां पर है, दुकानदार है जिसको जानता है,
उसके पास छाता है, वो जाके छाता मांग लेगा उससे। आगे बढ़ा, देखा कि ये रास्ता जाम है, तो एक और दूसरा रास्ता घूम करके चला जाएगा। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स को मालूम है कि कोई दिक्कत आने पर क्या क्या अल्टरनेटिव हम निकाल सकते हैं। कंप्यूटर के पास कोई दिमाग नहीं है, जो आप कमांड देंगे उस कमांड से काम होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। कंप्यूटर कोई भी अल्टरनेट ऑप्शन नहीं ढूंढेगा। ये हमारा था क्लास नंबर 3। अब आते हैं क्लास नंबर 4 पे। इसमें हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर्स आर नॉट इन्वेंशन, दे आर रिवॉल्यूशन। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि कंप्यूटर इन्वेंशन नहीं है, वो रिवॉल्यूशन है। क्रांति है, क्रांति। आज की डेट में अगर आप जाकर किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कंपनी, किसी भी व्यक्ति को आप बोलेंगे कि मेरे भाई तू बिना कंप्यूटर के एक दिन रह के दिखलाओ, बोलेगा भाई मैं एक टाइम खाना नहीं खाऊंगा चलेगा, फास्टिंग कर लूंगा, लेकिन मुझे कंप्यूटर चाहिए चाहिए, मतलब मोबाइल फोन चाहिए चाहिए, लैपटॉप चाहिए चाहिए। आप देखना कि अगर आपको कोई ऑप्शन दे कि देखो अभिनव, या तो तुमको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा या तुमको रात का खाना छोड़ना पड़ेगा, तो आप पाएंगे इस दुनिया के 90% से ज्यादा लोग बोलेंगे भैया खाना मत दो, मोबाइल वापस नहीं होगा, मोबाइल चाहिए। हम इतना ज्यादा इसके अब आदी हो चुके हैं, इतना ज्यादा ये अब हमको गाइड कर रहा है। मुझे मैसेज भेजना है, आई नीड मोबाइल। मुझे मीटिंग करनी है, क्लासेस लेने हैं, कंप्यूटर मोबाइल। मुझे कोई पोस्टर बनाना है, मोबाइल। मुझे किसी को फोन करना है, मोबाइल। मतलब ये अब इन्वेंशन नहीं है। एक बार को बिजली चली जाएगी, आई कैन हैंडल। एक बार को मेरा रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कैमरा काम नहीं करेगा, आई एम ओके। बट कंप्यूटर काम नहीं करेगा, इट्स गोइंग टू बी डिजास्टर। और किसी ने बहुत सच कहा है कि अगर बिल गेट्स के मन में आ जाए कि मैं एक दिन के लिए माइक्रोसॉफ्ट को बंद कर रहा हूं, तो लोगों ने कहा कि अगर बिल गेट्स ने बोल दिया कि भाई मैं तो मालिक हूं ना, मैं वन डे के लिए माइक्रोसॉफ्ट को शट डाउन कर रहा हूं, पूरी दुनिया बिखर जाएगी, रुक जाएगी। इतना ज्यादा हम लोग कंप्यूटर पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हमने देखा था वही सेम थिंग वंस अगेन, इनपुट डिवाइस, राइट, सीपीयू एंड वीडीयू मॉनिटर एंड प्रिंटर, दे आर योर आउटपुट डिवाइस। ठीक है। MICR जो है वो मैग्नेटिक इंक कोड रीडर है, जो चेक्स के नीचे लिखा रहता है, MICR आता है, उसको रीड करता है। बारकोड आपको मिलता है बिग बाजार में, जहां आप सामान खरीदते हैं, वो स्कैन करता है और बिलिंग हो जाती है। मदरबोर्ड में सारे के सारे चिप्स वगैरह जो है वो, जो भी उसके प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर है, वो लिखे रहते हैं। यस अभिनव, एनी क्वेश्चन? अभिनव ने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है? गलती से कर लिया है। नो सर, एल्ट प्लस कुछ दबा दिया तो अच्छा खुल अच्छा, गया। ठीक है, तुम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो साथ में, ठीक है, ठीक है, करो। ओके, तो ये हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, मेमोरी एंड ऑल। और ये वापस एक सेम, आई थिंक सेम ही सेम है प्रोग्राम। ओके, अब हमने देखा था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका क्या क्या फंक्शन है। वो अपने को मेमोरी में लोड करता है पहले, उसके बाद सारे प्रोग्राम्स को लोड करता है, डेटा को लोड करता है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसको इंटरप्रेट करता है, रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, राइट। और कैसे रिसोर्सेज, मेमोरी, इनपुट आउटपुट को मिल करके काम करना है, उसका भी वो ख्याल रखता है। इट इज द मैनेजर। हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, डेटा के फ्लो को मैनेज करता है, सबको मैनेजिंग करने का काम इसी का है। और इसीलिए कहा गया था कि भाई ये जो है ये मैनेजर है, ये पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम है हमारे कंप्यूटर का।
दैट इज योर ऑपरेटिंग डिवाइस। आप सबके पास में PDF है। अगर कोई भी चीज़ आप भूल गए हो, आई विल रिक्वेस्ट कि आप वापस जा करके उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बिकॉज Sir, please resend the PDF. The PDF is not working. Is not opening. which one? Yes, first, second, and third. It's Okay, so saying you can drop Ria- me, you can drop me a message, Abhinav, I will send you. Okay, not to worry. नाउ ऑपरेटिंग में फिर देखा था कि सिंगल यूजर एक ही आदमी यूज कर सकता है। जो मेरा लैपटॉप है वो सिंगल यूजर है, अगर मैं यूज करूंगा तो कुछ सेकंड आदमी आके इसमें यूज नहीं कर सकता है, एक ही आदमी यूज करेगा। बट यू गो इन बिग बिग कंपनीज, वहां पर एक सिस्टम में एक साथ मल्टीपल लोग काम करते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड मल्टीपल यूजर सिस्टम। देन हम देखा था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो हमारा इंटरफेस है उसमें क्या है, ग्राफिकल यूज किया गया है। एक्सेल का सिंबल बना हुआ है, आइकन बना हुआ है, वर्ड का बना हुआ है, फोल्डर का बना हुआ है, तो हमारे लिए उसको यूज करना बहुत ही आसान है। डेस्कटॉप हमको मालूम है, विंडोज जो है वो जो अलग अलग जो खिड़कियां खुलती हैं, जैसे कि अभी मेरे पास में जो दिखाया था मैंने, ये सारे के सारे विंडोज हैं जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। अलग अलग फंक्शंस के अलग अलग विंडोज हैं। मेन्यू बार ऊपर में आता है, उसके अंदर मेन्यू आता है, उसके नीचे पुश करने पर मेन्यू के ऑप्शंस आते हैं, और जो हम एक ऑप्शन से सेकंड में जाते हैं वी कॉल इट टॉगल। ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम है। यूजर प्रोग्राम 1, यूजर प्रोग्राम 2, यूजर प्रोग्राम 3, एक साथ 3 लोग काम कर सकते हैं। तीनों के सिस्टम बना हुआ है और तीनों के लिए डेटा भी डाला हुआ है। डेटा इट कैन बी सेपरेट ऑल्सो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि 1 वाला जो लड़का है वो 2 का यूज करे, डेटा यूज करे, 2 वाला 1 का यूज करे, 1 वाला 3 का यूज करे, ऐसा मल्टीपल यूज भी कर सकते हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग सिस्टम बना होता है। फिर हमने देखा था विंडोज 10 में क्या क्या है, ब्रीफ केस है, लैन है दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क, जिससे कि हम एक ही नेटवर्क में पूरे कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं। लाइक यू गो टू बैंक, यू गो टू LIC, एनी ऑफिस, आप पाएंगे सारे कंप्यूटर्स आपस में लैन से जुड़े हुए हैं। जो काम मैं इस कंप्यूटर पे करूंगा वो काम दूसरे वाले पर भी डिस्प्ले कर जाएगा। यस, अच्छा हर्ष भी कुछ ट्राई कर रहा है। साउंड रिकॉर्डर, Sir, हाँ बोलिए। briefcase means ब्रीफकेस अगर आप जाएंगे अपने कंप्यूटर पे और आप जा करके राइट क्लिक करेंगे और आप चूज करेंगे न्यू, तो न्यू में आपको ऑप्शन आएगा न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, न्यू ब्रीफकेस। सो ब्रीफकेस हम मानते Yes. हैं, है ना, मिल जाएगा आपको। सो ब्रीफकेस का अब ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं बिकॉज वी स्ट्रेट सेव फाइल्स, लेकिन पहले जमाने में इसका काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी थी कि सपोज अगर मुझे जमा करना है सारे वीडियोस, तो सारे वीडियोस को मैं एक ब्रीफकेस में सेव करूंगा। Sir, briefcase नहीं आ रहा है सर, फोल्डर और फाइल आ रहा है। अच्छा ब्रीफकेस अब नहीं आ रहा है। No sir, it's showing shortcut and folder only. इसका मतलब फिर ये हो सकता है कि अब ब्रीफकेस चूंकि ये पॉपुलर अब नहीं रहा, शायद इसको हटा सर दिया गया। हाँ बताइए। सर इसमें भी नहीं आ रहा सर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस, बिटमैप इमेज, Yes, sir. वर्ड, Yes sir, these एक्सेस, are पावर coming. पॉइंट, पब्लिशिंग These things are डॉक्यूमेंट, coming. ओके, No sir, इसका मतलब only these इसका things are मतलब हो coming. सकता है कि अब ब्रीफकेस को इन्होंने, चूंकि वो कम पॉपुलर हो गया था, उसको हटा दिया। अदरवाइज पहले वाले कंप्यूटर में अगर आप जाएंगे ओल्ड विंडोज 95 में अगर आप जाएंगे तो आपको ब्रीफकेस मिलेगा, ब्रीफकेस के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फाइल। तो उसको आप छोड़ दीजिए, फिर उसको आप भूल जाइए। साउंड रिकॉर्डर 95 सर कहाँ मिलेगा अब कहीं नहीं मिलेगा, अभी के समय कहीं में? नहीं मिलेगा, अब कहीं नहीं मिलेगा। ओके, नेतरहाट में रखा है नेतरहाट में पता नहीं, अब तो मैं भी बहुत दिन से वहां पर जाके चेक नहीं किया मैंने। वहां भी लेकिन नेतरहाट कंप्यूटर ये लैब सब हैज चेंज्ड नाउ, इट हैज बिकम कंप्यूटर वेरी। साइंस लैब के सामने था ना साइकिल का पूरा गैरेज वैरेज, हाँ, उसी में शायद था, टेलीफोन सबके साथ था में भी। राइट 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 राइट। ओके, तो ये बेनिफिट्स, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? ये मोर इंट्यूसिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये अच्छे से काम कर सकता है, मल्टीटास्क कर सकते, एक ही साथ आप नेट, एक्सेल, वर्ड, आप बहुत कुछ आप साथ में ऑपरेट कर सकते हैं। इसका जो मल्टीमीडिया है वो बड़ा अच्छा है, प्लग एंड प्ले। अब एक ही लैपटॉप में आप बहुत चीज़ें प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। यू कैन प्ले गेम्स ऑल्सो, यू कैन इंस्टॉल योर पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क,
सब कुछ आप कर सकते हैं। ये सब चीजें अब जो है सिस्टम में आ गई हैं। ये सारे के सारे जो है ये बेनिफिट्स ऑफ एंड फीचर्स ऑफ विंडोज 10 है, राइट। ये सारे आइकॉन हैं, यहाँ तक हमने किया था। इसके बाद हमने फिर आए थे, फिर हमने क्लास 6 में हमने कुछ ऑनलाइन करने का प्रयास किया था, राइट। हमने ऑनलाइन करने का प्रयास किया था और उसके बाद फाइनली हमने ये 7 इज द PDF ऑफ वर्ड, राइट। ये वर्ड का PDF है जो आप दोनों के पास में है। एंड देन नंबर 8 इज द PDF ऑफ एक्सेल। ये सारे एक्सेल के PDF हैं, राइट। और मुझे अभिनव ने भेजा है करके, आई थिंक आई गेव यू ऑल अ टास्क, और यही टास्क आई एम गोइंग टू आस्क यू इन एग्जाम ऑल्सो। मैं अभी से आई विल मेक इट ओपन। अभिनव एंड Sir, हर्ष, हाँ। sir, in my laptop, Excel is not opening and it is not responding. तो क्या करेंगे फिर? हाउ यू विल लर्न हर्ष? आप कैसे सीखेंगे फिर बताइए आप। अगर आपके लैपटॉप में अगर एक्सेल नहीं खुल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली अफेयर नहीं है। अभिनव, हाउ मच ही चार्ज यू? अभिनव, What, sir? how much that shopkeeper charged you for the office? I don't know, sir. अरे आपने जो डाला अपने कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसने कितना चार्ज किया आपको? Sir, let me ask from my father. Wait 2 minutes. अरे पूछो मत, मुझे यही मालूम। पर है, सर। यही पे पूछ लो, पूछो तो जरा। तो हर्ष को बता देंगे ना फिर। हर्ष को, हर्ष तो अभी अभिनव का भी प्रॉब्लम चल रहा था और उसने किसी कंप्यूटर शॉप के जाकर के उसने अपने कंप्यूटर में वापस से नया वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट डलवा लिया है। तो कांटी में भी मेरे ख्याल से आप कांटी में है ना आप हर्ष? तो कांटी मेरे ख्याल से शॉप होगा कंप्यूटर का, जहां जाकर के ये। हाँ, कितना बोल रहे हैं? 50 rupees. कितना? 50 rupees. बताओ भाई हर्ष। ओनली 50 रुपीज। 50 रुपए में अभिनव वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सब डाल के चलाया है। सो जस्ट टॉक टू योर मॉम, आस्क अ शॉपकीपर जो उसके पास कंप्यूटर का सिस्टम है, और आप डलवा लीजिए, क्योंकि आपको बिना प्रैक्टिस किए समझ में नहीं आएगा। सर, उसमें कोई वायरस नहीं ना है? वायरस कैसे आएगा भाई? वायरस कैसे आएगा? सर, अगर आप, बहुत जगह करवाए तो आ भी गया कुछ। तो आपको एक काम कर लीजिए, पहले आप जाइए इस दुकानदार के पास में, सबसे एंटीवायरस डलवा लो। 100 रुपए में लगता है, 100 रुपीज में एंटीवायरस आता है। यू पुट वन एंटीवायरस एंड देन पुट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। क्योंकि अब हमारा जो अगला है एग्जाम के बाद जो हम हैंडल करेंगे, दैट विल बी पावर पॉइंट। और पावर पॉइंट वही है जो कि मेरे पूरे क्लास का सिस्टम ही उसी के ऊपर में है। आई मेक ऑल माई क्लासेस ऑन पावर पॉइंट एंड देन आई शेयर एंड आई टीच। बहुत ही फैंटास्टिक ये सॉफ्टवेयर है। आप जब काम करेंगे कंपनी में, तो कंपनी में भी आपका सारा काम पावर पॉइंट के ऊपर होने वाला है फॉर ऑल प्रेजेंटेशंस। सो इस काम को आप फटाफट कर लीजिए, राइट। मेरे ख्याल से इस काम को आप आज शाम में या कल ही मॉर्निंग में करवा लीजिए। अदरवाइज आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आई विल आस्क यू इन प्रैक्टिकल, तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे फिर आप। ठीक है? ओके सर। तो व्हाट आई वांट फ्रॉम बोथ हर्ष एंड अभिनव कि आप आज से कल शाम तक सारे जो PDF हैं 1 to 8, आप नहीं, एक नहीं होगा आपके पास, 6 PDF नहीं होगा, बिकॉज 6 में हमने सीधा शेयरिंग करके प्रैक्टिकल किया था, वो आपके पास नहीं होगा। बट आपके पास 1 to 8 यानी कि 7 PDF आपके पास में होंगे। सातों PDF को रिवाइज कर लीजिए और उसको एक बार आप चेक कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम के दिन आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोग रेडी हो जाएंगे, देन वी विल गो फॉर एग्जाम ऑन 17th को हम थियरी करेंगे एंड 19th को वी विल गो फॉर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे, आई विल गिव यू अ टास्क, और आप मेरे सामने उस टास्क को एक्सेल पे या वर्ड पे करके दिखलाएंगे। दैट विल बी योर प्रैक्टिकल। ओके सर।